اس لیے کہ رات بھر کتابیں جو کھلی ہیں ان کتابوں میں جو نشانی نبی آخر کی لکھی تھی یہ وہی نبی تو اپنا پیٹ بچانے کے لیے یا تو آل محمد کو مانتے ہیں یا پھر مان کر تفسیر کرتے ہیں۔ کسی نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا نہیں، آپ کس سے پوچھیں کہ کس نے دیکھا؟ حسن علی اکبر کا منہ دھلا رہے ہیں، کبھی علی اکبر کو پکڑ کے چلنا سکھا رہے ہیں، علی اکبر گھٹنوں میں چل رہے ہیں، زینب ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ علی اکبر نے پہلا قدم زمین پہ رکھا، زینب نے کہا اللہ اکبر۔ بتائیے کا وجہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر کی صبح تھی تو خود میرے نانا رسول اللہ نے اذان دی تھی، وہ اسلام کی پہلی لڑائی تھی، یہ اسلام کی آخری لڑائی پہ ہاتھ رکھے اور رکھنے کے بعد پہلا لفظ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، السلام علیکم مومنین، ویلکم ٹو نیو ولاگ۔ آج میں موجود ہوں ٹھوکر نیاز بیک لاہور میں۔ مومنین علامہ اسجد رضا عابدی صاحب خطاب فرما رہے ہیں، تو بنا کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الحلقت سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم کیا جاتا۔ فرش کو عرش کیسے بنایا جاتا ہے؟ یقیناً جہاں پر ذکر علی ہو رہا ہو وہ فرش پھر فرش نہیں رہتا۔ یہ میرے عزیزوں کوئی جعلی جملے نہیں ہیں، یہ صرف تقریر چمکانے کے جملے نہیں ہیں، اس میں آپ سب کو بولنا چاہیے اور ضروری ہے کہ بولیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ واجب ہے کہ بولیں، اس لیے کہ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ جب عرش والا ذکر علی کر رہا ہو تو پھر وہ فرش کہاں رہتا ہے؟ وہ عرش ہی ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے، سیدھی سی دلیل یہ ہے، یا تو علی کو زمینی مانو تو چپ ہو جاؤ، اور اگر علی کو عرشی مان رہے ہو تو پھر جتنا تیزی سے اللہ اکبر کہا جاتا ہے اتنی تیزی سے یا علی مدد بھی کہا جائے۔ اس لیے کہ علی نے دنیا میں بھی یہ بتایا، بالکل سامنے ظاہری طور پر بھی یہ بتایا، اور سنی بھی بات ہے، اور اس پر زیادہ بولنا جب بات سنی بھی ہو۔ میں چونکہ پہلا سال ہے تو میں بڑی ہلکی ہلکی باتیں کر رہا ہوں، ابھی میں نے دقیق پڑھا ہی نہیں، ابھی جو میں اندر سے جانتا ہوں علی کو وہ میں آپ کو بتا ہی نہیں رہا، اس لیے کہ جب ابھی آپ جو ہے وہ پرائمری میں نہیں بول رہے تو پھر پی ایچ ڈی پہ کیسے بولیں گے؟ تو ابھی ذرا میں پرائمری کی باتیں جو آپ کی سنی ہوئی ہیں، بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگ کبھی بھی اپنے کو ان چیزوں میں شامل نہ سمجھا کریں، بزرگ ہٹا کے میں بچوں سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی میں نے وہ علی سنایا ہی نہیں ہے کہ جو علی اللہ جانتا ہے اور جو اللہ علی جانتا ہے۔ جب مزاج اس قابل ہوگا میں دیکھوں گا کہ مجمع میرے ساتھ ہے، میں دیکھوں گا کہ بھئی باتیں پہنچ رہی ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا کہ سنی بھی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن اسی سنی بھی بات میں سے ایک نئی دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ علی نے دنیا میں بھی یہ
बात बताई, दुनिया में भी दलील दी कि मैं अर्श वाला हूँ, दुनिया में भी दलील दी, बहुत सी दलीलें हैं और ये दलीलें आती जाएंगी और मैं आपके हवाले करता जाऊंगा। लेकिन सामने की दलील जो आपको याद है, जो आपको मालूम है कि अली ने भरी हुई मस्जिद नबवी में अजिल्ला असहाब किराम के सामने ये बात बताई और अमल करके बताया कि मैं अर्श वाला हूँ, मैं अर्श वाला हूँ, मैं अर्श वाला हूँ। पहला जुमला कहूंगा, आप समझ जाएंगे कि मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं। जब अली चौथी मंजिल खिलाफत पर ज़ाहिरी तौर पर आए, पूरी मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई थी, ऐसे में बैत अली हो गई और अली मजमे को चीरते हुए मिंबर की तरफ आने लगे। अब सबने देखा कि अली बैठेंगे कहां, अली बैठेंगे कहां। अब तो बोलो सुनी की बात है, सब देख रहे थे कि अली बैठेंगे कहां, इसलिए कि जब पहला आया उसने अर्शे को छोड़ा, पहली सीढ़ी पर बैठा, दूसरे आए तो वो दूसरी सीढ़ी पर बैठे, तीसरे आए तो वो तीसरी सीढ़ी पर बैठे। अब सीढ़ियां ही खत्म हो चुकी थी। लोगों ने कहा अली कहां बैठेंगे। एक बार अली ने तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, दूसरी पे कदम रखा, पहले पे कदम रखा, वहां बैठे जहां रसूल बैठ रहे थे। पूरे कारवान को लेके आगे बढ़ोगे, बच्चा बहुत अच्छा सुन रहा है, ये बच्चे बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इन्हीं को लेके आगे बढ़ना है। अली वहां बैठे कि जहां रसूल बैठे थे। तीनों सीढ़ियों को अपने कदमों तले रखा। मैंने जुमला हल्का किया है लेकिन वो जुमला इससे भी आगे का था। और वहां बैठे कि जहां रसूल बैठते थे, जहां रसूल बैठते थे। किसी ने एतराज किया और शायद उसी ने एतराज किया कि जिस वक्त अली खैबर फतह करने जा रहे थे और दुलदुल पर बैठ गए और दुलदुल पर बैठे तो अली के हाथ में अलम था और अली की निगाह तरे खैबर की तरफ थी, वो रहा खैबर और पैगंबर यहां खड़े हुए हैं, इधर अली की पुष्प पर, दुलदुल की पुष्प पर और अली की निगाह तरे खैबर पर है। और अली ने तरे खैबर की तरफ देख कर कहा, या रसूल अल्लाह, इनसे कब तक जंग करूं, या रसूल अल्लाह, इनसे कब तक जंग करूं। पैगंबर यहाँ है, अली वहां देख रहे हैं। पैगंबर ने वहीं से कहा, या अली, जब तक एक यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह न कह दे, या ये जजिया न देने, या ये हां न मान ले, तब तक इन पर परवाह चलती रहे। अली को इजाजत मिली, अली चले गए। जब अली चले गए तो किसी मोतरिज ने फिर एतराज किया कि ये तो अजीब बात है, ये तो एहताम रिसालत नहीं था, ये तो एहतराम रिसालत नहीं था। अली को चाहिए था कि अली घोड़े से उतरते, पलटते, नबी की तरफ आते, हाथ जोड़ते, सर झुकाते, फिर पूछते कि या रसूल अल्लाह कहां तक जंग करूं और कब तक जंग करूं। ये अली ने एहतराम रिसालत नहीं किया है। तो अब जवाब देने वाला भी उतना ही बुलंद था। जब सवाल करने वाले, एतराज करने वाले ने अली पर एतराज किया तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि तुझे मालूम नहीं, अली इबादत की नियत कर चुके थे। जब इबादत की नियत कर ली जाती है तो दाएं बाएं नहीं देखा जाता। जब इबादत की नियत कर ली जाती है तो फिर दाएं बाएं नहीं देखा जाता। पैगंबर का कहना ही इबादत था। इताअत रसूल इबादत है, इताअत रसूल इबादत है। तो एतराज करने वाले तो अली पर एतराज करते रहे और जवाब भी आते रहे। ऐसे ही जब अली मिंबर के इस मकाम पर बैठे, इस मकाम को क्या कहते हैं, मिंबर का अर्शा, अर्शाए मिंबर, अर्शाए मिंबर। तो अली ने बता दिया मैं अर्श वाला हूं, अर्श पर ही बैठूंगा। बड़ी आसानी से सुनिए आपने जुमला, मैं अर्श वाला हूं, अर्श पर ही बैठूंगा। कोई खड़ा हो गया मोतरिज और उसने कहा, या अली, आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। मैं अपनी जबान में कह रहा हूँ, उस जमाने में कहा अंग्रेजी बोली जाती थी, उस जमाने में तो बहुत से अरबों को अरबी नहीं आती थी। पता नहीं उसका अरबों की तादाद क्या थी, 1 अरब थे या 2 अरब थे या 3 अरब थे। सलामत है, कुर्बान जाऊं आपकी समातों पर। तो उस जमाने में तो अरबों को भी अरबी नहीं आती थी, लेकिन क्यों अरब की इजाजत है। पैगंबर जब मुबाहिला जीत कर आ गए, मुबाहिला सर कर लिया और मुबाहिले के फातिह पैगंबर करार पाए, तो पैगंबर ने बताया कि हम मुबाहिले की तैयारी करने गए। तो मुबाहिले की तैयारी क्या हुई कि जैसे ही
पास एक और मैदान है और वो है लानत का मैदान, और लानत का मैदान हमेशा सच्चों ही के हाथ रहा है। वो उसके फाते रहे, वो उसके फाते रहे, मैदान मुबाहिला के फाते हमेशा से सच्चे रहे। तो पैगंबर ने कहा कि जब तय हो गया कि हम अपने बेटे लाएंगे तुम अपने बेटे लाओगे, हम अपनी औरतें लाएंगे तुम अपनी औरतें लाओगे, हम अपने नफूस लाएंगे तुम अपने नफूस लाओगे, और जो झूठा होगा उस पर हमारी नहीं अल्लाह की लानत होगी। तो वो उधर से ईसाई चले गए अपना मुबाहिला का लश्कर तैयार करने, अपने बेटे लेने, अपनी खवातीन लेने, अपने नफ्स लेने। इधर से पैगंबर चले बेटे लेने, खवातीन लेने और नफ्स लेने। अब भरा हुआ है मदीना कलमा गोयों से, सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, सब सच बोलने वाले। ला इलाहा इल्लल्लाह तो सच है ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी सच है। तो सारे सच्चे बोलने वाले मदीने के घरों में रह रहे थे, सारे सच्चे। पैगंबर ने कोई दरवाजा नहीं खटखटाया, एक ही दरवाजे में आए, बेटी बेटी मैं बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ, ये मुबाहिले की तैयारी हो रही है, जो चादर में पांच आए, बेटी मैं बदन में ज़ौक़ महसूस कर रहा हूँ। पूरी पैगंबर ने रिवायत लिखवा दी कि मैं ज़हरा के घर में गया और कहा बेटी मैं अपने बदन में ज़ौक़ महसूस। बेटी ने फौरन कहा बाबा आपको अल्लाह ज़ौक़ से अपनी पनाह में रखे, आपको अल्लाह ज़ौक़ से अपनी पनाह में रखे। यानी बेटी ने बताया बाबा आपको ज़ौक़ है, तो आपके ज़ौक़ का इलाज ये है कि आप अल्लाह की पनाह में आ जाए, आप अल्लाह की पनाह में आ जाए, आप अल्लाह की पनाह में आ जाए। तो फौरन रसूल ने बताया कि दुनिया में अल्लाह की पनाह क्या है, तो फौरन का लाओ अपनी चादर। बता दिया कि अगर पूरी कायनात में कहीं कोई अल्लाह की पनाह है तो वो चादर ज़हरा है, कि जिसमें रसूल भी आके पनाह तलब करता। बता रहे पूरा वाक़या बता रहे। और एक बार कहा कि मैं चादर में आ गया, ज़हरा ने चादर उड़ाई, हुसैन आए, हुसैन आए, हुसैन ने कहा अम्मा सलाम, कहा वालेकुम सलाम, कहा अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है, मुझे नाना की खुशबू आ रही है, मुझे नाना की खुशबू आ रही है। पता नहीं जुमला पहुंचेगा या नहीं। पैगंबर के 11 हुजरे थे, 11, समझे, समझ गए ना, 11 हुजरे थे, और हुजरे में कुछ लोग भी रह रहे थे और कुछ खवातीन भी रह रहे थे। 11 हुजरे थे, और पैगंबर एक एक बारी लगाते थे, आज इनके आज इनके आज इनके आज इनके 11 हुजरे, और 11 हुजरों में भी बिस्तर लगे हुए थे रसूल अल्लाह। किसी हुजरे वाले या हुजरे वाली ने नहीं बताया कि पैगंबर के जिस्म से खुशबू आती थी। पैगंबर की रिसालत की खुशबू थी, नबूवत की खुशबू थी। एक बच्चा जो है 4 बरस का 5 बरस का हुसैन, वो कह रहा है अम्मा मैं रिसालत की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। कहा जाओ चादर में तुम्हारे नाना है, चले जाओ। इजाजत लेके आ गए। अब पैगंबर ने पूरा आयत तफसीर के नुज़ूल का मामला सुना दिया कि ऐसे में हसन आए, हसन ने भी कहा कि मैं खुशबू महसूस कर रहा हूँ, हसन को भी बुला लिया। उसके बाद अली आए और अली ने कहा कि मैं रिसालत की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, अली भी आ गए। ज़हरा इजाजत लेके आ गए, पांचों चादर में जमा हो गए, और जब पांचों चादर में जमा हो गए तो एक बार चादर के अंदर जो थे उनके लिए पैगंबर ने कहा अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैत, यानी चादर के अंदर वाले हैं, चादर के अंदर वाले हैं अहले बैत, बाहर वाले अहले बैत नहीं, इसलिए चादर ओढ़ना जरूरी था। पैगंबर ने पूरा पूरा मैदान मुबाहिला की तैयारी का मंजर बताया। जब हम पांचों तैयार हो गए तो हम बाहर निकले। अब हम बाहर निकले, असहाब बाहर खड़े हुए थे इंतजार में कि पैगंबर कौन सा काफिला लेके बाहर आते। तो देखा खुद रसूल है, बेटी है, दामाद है, दो नवासे। मुबाहिला नहीं पढ़ना, सिर्फ एक जुमला आपके हवाले करना, सिर्फ एक जुमला आपके हवाले करना, और वो जुमला आप तक पहुंचना है। मैंने क्या कहा कि बहुत से अरबियों को भी अरबी नहीं आती थी। मैं इधर उधर कभी भटकता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी एक लफ्ज की आपसे बात चाहता हूँ कि उस वक्त बहुत से अरबों को अरबी नहीं आती थी। तो अब मैं उसकी दलील देने जा रहा हूँ। पैगंबर चले, बाहर असहाब खड़े थे कि अंदर से, असहाब को मालूम है कि अंदर से आले मोहम्मद का जुलूस आने वाला है, यानी अहले बैत के घर के तबर्रुकात के जुलूस का इंतजार करना सुन्नत सहाबा है। चले पैगंबर, चले रसूल अल्लाह और आगे बढ़ गए और उस मकाम पर पहुंचे कि जहां
नजरान पहले से मौजूद थे। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपने मुबाहिला सैकड़ों मरतबा सुना है और अभी आपने मुहर्रम से 6 दिन पहले मुबाहिला बनाया कि आपने सुना है कि इधर से रसूल चले, सैकड़ों नुक्ते आपने सुने। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूं कि आपके मुताले की रोशनी में, आपके मुशाहिदे की रोशनी में और आपकी स्टडी की रोशनी में और आपके समातों की रोशनी में जितना आपने मुबाहिला सुना है और जितना आपने मुबाहिला पढ़ा है, जो उधर से नसारे नजरान आए थे उनमें आपने कोई बच्चा देखा था? उनमें आपने कोई औरत देखी? कहीं आपको ये पता चला कि जो ईसाई आए थे वो औरतों को लाए थे? जबकि तय ये हुआ था कि तुम अपनी औरतों को लाओगे, हम अपनी औरतों को लाएंगे, तुम अपने बेटों को लाओगे, हम अपने बेटों को लाएंगे, तुम अपने नफ्सों को लाओगे, हम अपने नफ्सों को लाएंगे। कह तो ये हुआ था, लेकिन क्या हुआ? हुआ ये कि रात भर किताबें खुली ईसाइयों के, जहां पर ईसाई ठहरे थे, नजरान के ईसाई, वहां रात भर किताबें खुली, सारे तौरात के नुस्खे, सारे इंजील के नुस्खे, आसमानी किताबें जो उनके पास आ रही थी, कुछ वो आयतें जो सीना बसीना थी, कुछ वो आयतें जो हाथ की लिखी हुई थी सैकड़ों बरस पुरानी, सारे नुस्खे खुल गए, सारे नुस्खे खुल गए और इसमें पढ़ा जाने लगा क्या है, क्या है, क्या है। सारी निशानियां जो तौरात, ज़बूर और इंजील और जितने सुहफ़ाए आसमानी में थी वो सारी पढ़ी, और जब पढ़ी तो उनमें का सबसे बड़ा जो राहिब था 120 बरस का, 120 बरस का, उसको सैयद कहते थे, नाम था अस्ता। 120 बरस का जो सबका भी बाप था, सबका पोप था उस जमाने में, समझ लीजिए, जो पोप था उस जमाने में सबसे बड़ा राहिब, उसने किताबें बंद करवा और उसने एक बार कहा कि ठीक है हम जाते। रास्ते में चल रहा था, जा रहा था मुबाहिला करने, उसी पोप का, उसी राहिब का पांव पत्थर से टकराया, उसके पांव में जरा सी खराश आ गई। इसका भाई था एक, वो था 80 बरस का या 70 बरस का, उसके बाद उसे राहिब बनना था। उसके भाई ने देखा बड़े भाई के पांव में खराश लग गई है और उससे जरा सा खून रिस रहा है, तो इस छोटे भाई ने एक बार अपनी जबान से जुमला निकाला और कहा, बुरा हो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का, ना वो हमें ऐसे बुलाता और ना मेरे भाई के पांव में खराश आती। जैसे ही छोटे भाई ने बड़े भाई के लिए जुमला ये कहा, बड़े भाई ने कहा इधर आओ, करीब आओ। बूढ़े राहिब ने कहा करीब आओ, वो करीब आया, कान लाया, उसने कान में कहा, अब तो तूने ये जुमला कह दिया है गुस्ताखी में, आप अब्दुल्ला के यतीम के बारे में ऐसा जुमला ना कहना। समझ रहा हूं कि मैं कोई दादी अम्मा हूं और लोग बच्चों को कहानी सुना, बच्चे सो गए, सुना अब तो कह दिया है, लेकिन आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के बारे में ऐसा कोई जुमला ना कहना। आहिस्ता से उसने कहा, तो उसने कहा कि क्या मतलब? भाई से पूछा, बड़े भाई से पूछा, क्या मतलब? क्यों ना कहो? कहा इसलिए कि रात भर किताबें जो खुली है, उन किताबों में जो निशानी नबी आखिर की लिखी थी, ये वही नबी है। आपको दुआएं देता हूं, यकीन करें जब आप बात देते हैं और आपके हाथ बुलंद होते हैं, मेरे दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। खुदा आपको सलामत रखे, सबको सलामत रखे, सबको सलामत रखे। कहा कि भाई जो रात भर किताबें खुली और मेरे इल्म की रोशनी में जितनी पेशन गोलियां और जितनी निशानियां आसमानी किताबों में लिखी हुई हैं पैगंबर आखिर के लिए, वो सब इस पर पूरी उतर रही और यही नबी आखिर है। तो उसने छोटे भाई ने कहा, तो भैया बात ये है कि जब यही नबी आखिर और सच्चा नबी है तो हम मुबाहिला करने क्यों जा रहे हैं? या फिर हम जाते हैं मुबाहिला करने? उसने कहा करीब आ जा, सुन, ये जो गिरजा है ना हमारा, इसकी सालाना कमाई है 2.5 लाख दीनार। जो चढ़ा के चढ़ते हैं वो अलग है, जो घर बनाया गया है वो अलग है। ये सारा खेल इसीलिए है कि अगर मोहम्मद को मान लिया और ऐलान कर दिया तो पेट पे पत्थर बांधने पड़ जाएंगे। हाय हाय हाय, बड़े भोले बन रहे हैं आप। मैंने तो आपको एक घोषणा दिखा दिया, अली को सब जानते हैं, मानते इसलिए नहीं है कि पेट पे पत्थर बांधने पड़ जाएंगे। इतने चढ़ावे, ये सब कुछ आ रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो बहुत से लोग अपना पेट बचाने के लिए या तो आले मोहम्मद को मानते हैं या फिर मान कर तफसीर करते हैं, या फिर मान कर घटाते हैं, या फिर मान कर रुतबा कम करते हैं।
اس لیے کہ ہے سارا جھگڑا معاشیات کا، دین کا ہے نہ دینیات کا ہے، سارا جھگڑا معاشیات کا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے آپ، یہ صرف ہم ہیں جو بغیر لالچ کے فرش ادا پر آ کر بیٹھتے ہیں، بغیر لالچ کے فرش ادا پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے اتنے بڑے گھر میں جا رہے ہیں، اتنی بڑی درگاہ میں جا رہے ہیں، اتنے بڑے حسین کے اتنی بڑی درگاہ میں جا رہے ہیں، جملہ ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس ہوگا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اتنی بڑی درگاہ میں اتنے بڑے گھر میں جا رہے ہیں کہ جس گھر کو اللہ نے اپنے گھر کے برابر میں رکھا ہوا ہے، جو گھر اللہ کا پڑوسی ہے، علامہ صاحب کی گفتگو، بھائی حسین اللہ کا پڑوسی ہے، میں کہہ چکا ہے جملہ، حسین اللہ کا ہمسایہ ہے، جہاں پر بھی ہماری مسجد ہے اس کے برابر میں امام باڑا۔ کبھی آپ کسی سے پوچھئے کہ بھائی نہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے مسجد کے برابر میں امام باڑا کیوں رکھتے ہیں؟ جہاں مسجد برابر میں امام باڑا، جہاں مسجد برابر میں امام باڑا، تو یہ آپ نے امام باڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ آپ سے سوال کریں، آپ پلٹ کے اس سے سوال کیجئے گا کہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ آپ اسے پلٹ کے پوچھئے گا کہ تمہارے مسجد کے برابر میں امام باڑا کیوں نہیں؟ یہ امام باڑا کیا چیز ہے؟ یہ امام باڑا ہے آل محمد کے گھر کی شبیہ، اس لیے کہ مسجد بھی حشر نہیں ہے، مسجد بھی شبیہ ہے اللہ کے گھر کی، مسجد بھی اللہ کے گھر کی شبیہ ہے نا، اسی طرح امام باڑا بھی حسین کے گھر کی شبیہ ہے، شبیہ کے برابر میں شبیہ، تو ہم نے یہ شبیہ بنائی کہاں سے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے کیوں بند کیا، آپ نے کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا تھا، لے جاؤ جملہ سب کا سنا ہوا جملہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا تھا اے نبی یہ سارے دروازے بند کر دو، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا، علی و فاطمہ کا دروازہ۔ تو جی ناظرین سر آپ کو کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ سردی افواد کی روایت تو آپ کو یاد ہے، کہا سارے دروازے بند ہو جائیں گے، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا، کون سا دروازہ؟ علی و فاطمہ کے گھر کا دروازہ۔ بڑے ادب سے ایک جملہ کیا، ادب سے، یہ 11 حجرے جو تھے یہ رسول اللہ کے حجرے تھے۔ مجھے حیرانی لگتی ہے کہ آپ سمجھ کے بھی چپ ہو جاتے ہیں، یہ وہی مسئلہ نہیں ہے، پیٹ والا، جب سمجھ جاؤ تو بولنا ضرور ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، جب سمجھ جاؤ تو بولنا ضرور ہے۔ 11 حجرے تھے، 11 دروازے تھے رسول اللہ کے جو کھل رہے تھے مسجد، ان 11 کو بھی بند کروا دیا، ایک دروازہ کھلا رہے گا اور وہ ہے علی و فاطمہ کے گھر کا دروازہ۔ اور سنی بھی روایت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں پوری روایت، اور اس کے حوالے سے ایک جملہ وہی رکا ہوا ہے، بہت سے عربوں کو عربی نہیں آتی تھی، جملہ وہی رکا ہوا، لیکن جب یہ ذہن بات آ رہی ہے تو آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ بھائی 11 دروازے، سارے دروازے بند کر دیے، سارے دروازے، تو اب سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں بند کروائے؟ سوال پیدا ہوتا اس زمانے میں بھی ہوا، اور اس کے بعد جو روایتیں لکھی جاتی رہی، کتابیں لکھی جاتی رہی، اس میں جو پہلی جو وجہ تھی اس کو ڈائلیوٹ کر دیا گیا، ڈیزالو کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، ہوتے 300-400 سال بعد انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس کے سارے دروازے بند کروا دیے کہ بہت سے عجیب عجیب لوگ عجیب عجیب کیفیتوں میں، عجیب عجیب حالتوں میں مسجد سے گزرتے ہوئے چلے جاتے تھے، عجیب عجیب حالتوں میں۔ اب وہ ممبر سے کیا بیان، ہم تو ممبر کے تقدس کے لائق ہیں، قائل ہیں اس ممبر کے تقدس کے، ممبر پہ تقدس اور تہذیب عزاداری کا خیال رکھا جائے، الفاظ کا چناؤ بھی بہت ضروری ہے اس ممبر کے لیے، اس لیے کہ ممبر تہذیب اعضا سکھاتا ہے، تو اس لیے میں بڑے تقدس سے، بڑے احترام سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ نہیں تو آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی ممبروں پہ بیڈ روم ٹاکس کی جا رہی ہے، بیڈ روم کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، شادی کے آداب 6 اور 7 اور 5 محرم یہ سکھایا جا رہا ہے، تو میں تقدس قائل ہوں، اس لیے میں نے بڑے احترام سے لفظ کہا کہ عجیب عجیب حالتوں میں لوگ جا رہے تھے، وہ حالتیں جو نجاست والی حالتیں تھیں۔ انہوں نے کہا بھائی رسول اللہ سے اللہ نے کہا کہ ہمارے کن حالتوں میں یہاں سے چلے جاتے ہیں تو پر کرو سب، تو اس نے بھی فضیلت علی و زہرا ہی کی ہے، کہ صرف علی و زہرا ہے کہ جو جس حالت میں ہو یطہرکم تطہیرا ہے، جس کیفیت میں ہو وہ ہمیشہ پاک و طاہر ہے۔ ایک تو اس میں یہ کیفیت نکل ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں،
सुना भी आपने जुमले, लेकिन मेरा जुमला भी ले जाइए। ये सारे दरवाजे बंद हो गए। कहा भाई अजीब अजीब हालतों में आते जाते थे, इसलिए दरवाजे बंद करवा दिए। अच्छा, तो अगर यही वजह थी और यही मकसद था, यही सबब था कि अजीब अजीब हालतों में आ रहे जा रहे, इसलिए दरवाजे बंद करवा दिए, तो किसी ने बाद में कहा या रसूलल्लाह एक छोटी सी खिड़की की इजाजत है, एक खिड़की की इजाजत है? कहने किसी ने कहा अच्छा एक सुराख की इजाजत है। देख रहे सुराख से क्या किया जाता है? आगा झाकी। पहले कहा कि खिड़की की इजाजत है, कहने क्या सुराख की इजाजत है? कहने मेरी मर्जी नहीं है, अल्लाह की मर्जी है, सब बंद हो जाए। न खिड़की की इजाजत है, न सुराख की इजाजत। अगर वजह ये थी कि कोई किसी भी हालत में आता जाता है, तो खिड़की की और सुराख की इजाजत क्यों मांगी जा रही थी? क्या कोई खिड़की और सुराख से भी आता जाता है? सुराख से तो सांप ही आता जाता है। अगर आने जाने वाला ही मामला था, तो फिर खिड़की और सुराख की इजाजत भी मांगी जा रही, कोई इनसे तो आता जाता नहीं है। मकसद कुछ और है, मकसद कुछ और, मतलब कुछ और, अल्लाह कुछ और बताना चाहता है। सैकड़ों बताने हो सकते हैं, एक वजह मैं आपको बताता हूँ, और वो क्या है? सारे दरवाजे बंद करवा कर सिर्फ एक दरवाजा खुलवा कर अल्लाह ने ये बताया कि अब इसके बाद किसी की शरीयत नहीं चलेगी, सिर्फ अली और फातिमा के घर की शरीयत चलेगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इधर सलामत रहेगा, सलामत रहेगा, सिर्फ अली और फातिमा के घर की शरीयत चलेगी। वजह बताऊं क्या? जब नमाज की बात आई, उस वक्त नमाज पढ़ी, पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ी, तो पैगंबर ने एक हदीस दी है, और ये हदीस सियासत में भी है, कुतुब अरबा में भी है। पैगंबर ने हदीस इरशाद फरमाई, सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो। इस सुनी भी हदीस है, तो सारी कोई बातें सुना रहा हूं, जो आके सुनेंगे तो बोला करें भाई, और खुश हो जाए कि भाई जाकिर उतना ही जानता है जितना हम जानते हैं। ये आपको खुशी नहीं, ताकि आपकी जरूर मुस्कुराहट आ जाए। सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे नमाज पढ़ो, जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे नमाज पढ़ो। और बरस गुजर गए, 4 फिक्रे बन गए। इमाम शाफी अलैहि रहमा, इमाम मालिकी अलैहि रहमा, इमाम अहमद इब्न हंबल अलैहि रहमा, इमाम हनीफा अलैहि रहमा, ये 4 फिक्रे बन गए। पहले इमाम से पूछा कि क्या हदीस है? उन्होंने कहा कि भाई सल्लू का कमा रअयतमूनी उसल्ली, तो उन्होंने नमाज का तरीका लिख दिया, ऐसे पढ़ी जाएगी। किसी का यहाँ बंधेगा, किसी का यहाँ बंधेगा, किसी का यहाँ बंधेगा, है नहीं? ये तरीके। तो हमने उनसे पूछा पहले साहब से कि पैगंबर ने तो ये कहा था कि जैसे मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे पढ़ो, क्या आपने रसूल को देखा था? साहब को देखा? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो रिसालत आपके 80 बरस के बाद आए। वाह 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 वाह, 80 बरस के बाद आए। उन्होंने कहा अच्छा। दूसरे साहब से पूछा आपने देखा? कहा हम पहले के भी 80 बरस के बाद आए। तीसरे से पूछा, आपने कहा उनके बाद आए। तीसरे से चौथे से पूछा, उन्होंने कहा हम उनके भी बाद आए। किसी ने ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने रसूल को देखा। सच बोल रहे थे, ये तक नहीं कहा कि ख्वाब में देखा। ये जी सलामत, ये तक नहीं कहा कि ख्वाब में देखा। सबने सच बोल दिया, सच्चे भाई वाह क्या बात है, इतना वाजिब है, हमने इतना किया। लेकिन किसी ने रसूल को नमाज पढ़ते देखा नहीं। अब किससे पूछे कि किसी ने देखा? हसन से पूछा तो हसन ने कहा मैंने दाएं तरफ खड़े होके देखा। अली ने कहा मैंने साथ खड़े होके देखा। हुसैन ने कहा मैंने पुश्त पर बैठ के देखा। तो भाई जिसने देखा होगा उसी से तो पूछा जाएगा। तो अब अगर एक दरवाजा खुला हुआ है तो वो फजर में भी देख रहा है रसूल को, जोहर में भी देख रहा है, असर में, मगरिब में, इशा में। उसी से तो पूछा जाएगा कि नमाज कैसे पढ़ी जाए, रोजा 10 मिनट पहले खोला जाए कि बाद में, उन्हीं से तो पूछा जाएगा। इसलिए सारे दरवाजे बंद और एक दरवाजा खुला रहा, और वो है अली और फातिमा के घर का दरवाजा। तो इसलिए वसत शाम आते, किसी लालच में नहीं आते,
بعض لوگ تو ایسے آتے ہیں کہ واقعی ان کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوتے ہیں. اتنے غریب اور مسکین شیعہ اور محبان اہل بیت ہیں, لیکن سفید پوش ایسے ہیں کہ کسی سے اپنی غربت بیان نہیں کرتے. یہ ہے حسین کی محبت. اس کے باوجود غربت ہے لیکن پورے سال پیسے جمع کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مجلس گھر پہ کرنا ہے. ان کا بھی خیال رکھا کرو. وہ علی کا چاہنے والا نہیں جو علی کے چاہنے والے کی مصیبت کا ادراک نہ کر سکے, جو چہرے سے نہ پہچان سکے کہ یہ بھائی مصیبت میں ہے. بالکل منع کیا گیا کہ اپنے ایمانی بھائیوں کا خیال رکھو. خبردار اپنے ایمانی بھائیوں کا خیال رکھنا. تمہارا کوئی ایمانی بھائی اس کو تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو, اس لیے کہ سب غدیری ہیں, سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے. تو اس لیے کسی لالچ میں یہاں نہیں آتے, حسین کی محبت میں آتے. کوئی پیٹ پہ پتھر باندھنے والا مسئلہ نہیں ہے, آتے ہیں حسین کی محبت. اس لیے میں نے آپ سے ایک جملہ کہا کہ ہم حسین کی محبت میں آتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے گھر کا پڑوسی ہے حسین, اللہ کے گھر کا پہلو ہے حسین. ہمیں جو فرما لیا آپ نے, ٹھیک ہے. کیا کہا میں نے, وہاں سے وہ اپنا لشکر لائے, یہاں سے پیغمبر اپنا لشکر لے گئے. انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں یہاں پر اس لیے نہیں لائے سب کو کہ پتا تھا نصارہ نجران کو کہ یہ یہاں پر اور ان سے مباہلہ نہیں کرنا. سامنے آ گئے, ادھر اہل بیت آ گئے اور آگے آگے حسین, پیغمبر سے بھی آگے حسین. اس لیے کہ پیغمبر نے حسین کو گود میں لیا ہوا, تو گود میں جو بچہ ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے. اور ایک ہاتھ سے حسین کو گود بھی دی, ایک ہاتھ حسن کی انگلیوں میں, پیچھے زہرا ہے اور سب سے پیچھے علی. یہ قافلہ ہے سچوں کا قافلہ, اور اللہ 1400 برس سے کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کرے تو باہر اپنی جگہ چھوڑ, ہم مباہلہ نہیں کریں. وجہ کیا تھی کہ ادھر سے آل محمد آ رہے اور ادھر سے نصارہ نجران. جہاں سے آل محمد آ رہے تھے, رسول آ رہے تھے, سب کو کہہ دیا تھا پیچھے رہنا, پورے مدینے کو کہا تھا ساتھ نہیں آنا. یہ احتیاط اشارہ پا, یہ امت پر شفقت, یہ امت پر رحمت للعالمین کی رحمت, کہ سب سے کہہ دیا ذرا دور رہنا, قریب نہ آ جانا. اس لیے کہ ہم ہاتھ اٹھا کے کہیں گے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, کہیں وہ ادھر ہی نہ آ جائے. دور رہنا, سب پیچھے رہنا, صرف ہم 5 چاہیں, سب دور کھڑے رہے. جو ایک مطالعہ کا فاصلہ ہو سکتا تھا ادھر کھڑے رہے. سامنے نصارہ نجران, ادھر نصارہ نجران, ادھر سے نبی آ رہے. تو نبی جہاں سے آ رہے تھے پیچھے پہاڑ تھا, پیچھے پہاڑ تھا. اشقف نے دیکھا اور فوراً کہا پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹو, خبردار مباہلہ نہ کرنا. سب سے بڑے پادری 120 برس کے پادری نے کہا خبردار پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, مباہلہ نہ کرنا, مباہلہ نہ کرنا, محتاج ہوگا مباہلہ نہ کرنا. کیا ہوا؟ وہ دیکھو پہاڑ کے پیچھے سے عذاب کے آثار نمودار ہو گئے, عذاب آ رہا ہے, عذاب. اور اگر آج مباہلہ کر لیا تو یہ عذاب ہم پر آئے. سب نے ہاتھ اٹھا دیا, ہم مباہلہ نہیں کریں گے, ہم مباہلہ نہیں کریں گے. پیغمبر نے کہا نہیں کرو گے, کہا نہیں. کہا پھر جزیہ دو, جرمانہ دو, جو فوج پسپا ہوگی اس پر واجب ہے کہ وہ جرمانہ دے. جیسے خیبر علی نے فتح کیا تو سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا. اسی طرح یہ ہوا کہ نصارہ نجران نے کہا ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم جرمانہ دیں گے, ہم جزیہ دیں گے, جزیہ دیں گے, ہم جنگ نہیں کریں گے, ہم مباہلہ نہیں کریں گے, جزیہ دو. طے پایا کہ سال بھر مسلمانوں کو گندم دو گے, سال بھر مسلمانوں کو لباس دو گے, سال بھر ہمیں جس ہتھیار کی ضرورت ہوگی دو گے. تو جزیہ عیسائیوں پر واجب تھا, اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی صداقت کا جواب نہیں لا سکے, اور اس وقت تک واجب ہے جب تک جواب نہ لا سکے. آج انہی عیسائیوں سے تو لے رہے ہو, کبھی IMF کے نام پہ لے رہے ہو, کبھی قرضے کے نام پہ لے رہے ہو, کبھی سود کے نام پہ لے رہے ہو. مغربی قوتیں دے رہی ہیں, یہ لے جاؤ لباس لے جاؤ, یہ لے جاؤ ہتھیار لے جاؤ, یہ لے جاؤ گندم لے جاؤ, آلو لے جاؤ, پیٹرول لے جاؤ, یہ سب لے جاؤ. ارے بھائی مسلمانوں, یہ تمہارا حق ہے, قرضہ نہیں ہے, یہ حق ہے. جب تک عیسائی آل محمد کی صداقت کا جواب نہیں لاتے ان پر یہ جزیہ واجب ہے, ان پر یہ جزیہ واجب ہے. کل بھی تمہارا حق تھا, آج بھی تمہارا حق ہے. فرق یہ ہے کہ کل غالب آ کے لے رہے تھے, آج ذلیل ہو کے لے رہے ہیں. آج ذلیل ہو کے لے رہے. کیوں ذلیل کیوں ہو گئے؟
अब तो साथ दे दो जितने लोग हैं आले मोहम्मद को भूल गए, मुबाहिला भूल गए, और वो चाहते भी ये थे कि ये मुबाहिला भूल जाए। ये तो हमारी जान पे आ जाएगी। कहा हम मुबाहिला जीत गए पैगंबर आके, और कहा जब हम चादर में बैठे हुए थे तो आयत उतरी, जिब्राइल आयत लाए। जिब्राइल वहां से भी इजाजत ले रही थी जिब्राइल ने, और जिब्राइल दोबारा आए, मुझसे भी इजाजत ली, इसलिए कि जहरा चादर में थी, इसलिए दोहरी इजाजत की जरूरत है। आ जाओ अमीन, जिब्राइल अमीन चादर में आ जाओ। जिब्राइल चादर में आए और आकर आए तफसीर सुनाए। पैगंबर ने कहा, जिब्राइल ने कहा इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबअ अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। पैगंबर ने आयत तफसीर सुना दी कि हमारी शान में आयत नाज़िल हुई है जो चादर के अंदर से। कुछ लोग एतराज करते हैं और बेतुका एतराज कि भाई जिब्राइल की क्या मजाल है चादर में आया, जिब्राइल की क्या मजाल है चादर में आया, चादर में कैसे आ सकते हैं? वो तो खुदा खालिक, उनके लिए अर्ज कर रहा हूं, जिब्राइल का चादर में आके आए तफसीर सुनाना वाजिब था। अगर बाहर सुना देते तो बाहर वाली भी कहती हम भी शामिल हैं। चादर के अंदर सुनाना वाजिब, ये चादर के अंदर जो जैसे ही पैगंबर ने आए तफसीर सुनाई, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबअ अन्कुम रिज्सा, जैसे ही लफ्ज़ रिज्स पे आए, रे जीम सीन, रिज्स अरबी जबान का लफ्ज़, और अरबी मजमा सामने था पैगंबर के सामने। हम तो बैठे नहीं थे कि हम पाकिस्तान से गए हों या लाहौर से गए हों, पंजाबी समझ रहे हैं या उर्दू समझ रहे हैं, हम तो सारे इस वक्त हमें क्या पता अरबी में क्या। उस वक्त जो लोग बैठे थे सारे अरबी थे, उनका खाना अरबी, पीना अरबी, ओढ़ना अरबी, बिछौना अरबी, उनकी मादरी जबान अरबी। बात यह है कि मरहब की मां की जबान भी अरबी थी, तभी तो वो अली के जुमले को समझ गया, अना लज़ी समअतनी उम्मी हैदरा, कि उसकी मां ने कहा था कि जब हैदर सामने आ जाए तो जंग न करना। तो सब अरबी समझने वाले, सब अरबी जानने वाले, और ऐसे में एक साहब खड़े हुए, एक शख्स खड़े हुए, एक सहाबी खड़े हुए, जलील उम्मत सहाबी खड़े हुए, और उन्होंने कहा यार रसूल अल्लाह, एक सवाल है। क्या सवाल है? कहा रिज्स के मानी क्या है? मेरा यही तो मकसद था कि बहुत से अरबों को अरबी नहीं आती थी, या उनको सलाम करो कि उन्होंने हम तक वो जुमला पहुंचवा दिया कि जो जुमला इस रिज्स के बातिन में छुपा हुआ था। वो समझ रहे थे कि रिज्स, लफ्ज़ रिज्स का ज़ाहिर कुछ और है और बातिन कुछ और है। खड़े होकर पूछा या रसूल अल्लाह, रिज्स के मानी क्या है? हालांकि अरबी जानते हैं, फिर पूछ रहे हैं कि अरबी जबान के लफ्ज़ रिज्स के मानी क्या है? तो पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा, रिज्स हुवा शक, शक करना सबसे बड़ी नजासत है। रिज्स हुवा शक, शक करना रिज्स है, नजासत है। तो पैगंबर ने बता दिया कि जहां शक आ जाए वहां नजासत है, और जहां नजासत है वहां आले मोहम्मद से दूरी है। ये सीधा सा फार्मूला है जो आप बचपन से सुन रहे हैं। जहां नजासत है वो आले मोहम्मद से दूर है, सीधा सा फार्मूला। भाई कुरान ने कह दिया कि नजासत आले मोहम्मद से दूर है, तो हमसे ये ना पूछना कि सब क्यों नहीं मानते। सब क्यों नहीं आ जाते, सब क्यों नहीं आ जाते, सब क्यों नहीं मानते। अब हम तो आपका एहतराम करते हैं कि अनीस ठेस न लग जाए आप बीनों को, ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप बीनों को। हम तो बड़ा एहतराम करते हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, इसलिए एहतराम में कुछ नहीं कहते। वो कुरान की आयत पढ़ देते कि अगर समझना है तो समझ लो, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबअ अन्कुम रिज्सा। आले मोहम्मद, तुमसे हमने रिज्स को दूर कर दिया, अब जो दूर है वो खुद बता दे वो क्या है। जिनसी बात है, कुरान का फार्मूला। तो हम तो बड़े लतीफ लोग हैं, बड़े एहतराम वाले, बड़े मोहब्बत वाले लोग, इसलिए कि हम हुसैन जैसे मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करते हैं। हुसैन से बढ़कर कोई मोहब्बत करने वाला 1400 बरस की तारीख है। हुसैन से बढ़कर इतना करीमा था, इतना करीमा था। करबला जाओ, करबला जाओ,
سے پہلے حسین دیتا، ہمارے طلب کرنے سے پہلے حسین دے دیتے، لیکن کریم آقا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، طلب کرنے سے پہلے دے دیتا، معاف کر دیتے ہیں حسین، خطائیں معاف کرنے والا حسین، کریم حسین۔ کریم کا مطلب یہ ہے کہ جو مانگنے سے پہلے عطا کر دے۔ حسین سخی ہے اور سخی الاسقیاء، سخیوں کا بھی سخی ہے، اس لیے کہ پورا خزانہ قدرت اس وقت حسین کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت حسین کے ہاتھ میں، اسی حسین کے ماننے والے۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ہم اپنے آپ کو تکلیف دے لیتے ہیں، امت کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہم امت کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم فرش عزا پر آ کر روتے ہیں تو اس لیے روتے ہیں، جو عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر روتا ہے وہ کسی کے بازو نہیں کاٹتا۔ عرض کر چکا، لیکن چاہتا ہوں کہ جملے محفوظ ہو جائے۔ جو قاسم کی پامال لاش پہ روتا ہے وہ کسی نئے دولہا کو قتل نہیں کرتا۔ جو سکینہ کے زخمی رخسار پر روتا ہے وہ کسی بچی پر تشدد نہیں کرتا۔ جو علی اصغر کے زخمی گلو پر روتا ہے وہ کسی ماں کی گود نہیں اجاڑتا، اور جو علی اکبر کے زخمی جگر پر روتا ہے وہ کسی بوڑھے باپ کے سامنے کسی کڑیل جوان بیٹے کو قتل نہیں کرتا۔ ادرکو اللہ، علی اکبر شبیہ رسول، شبیہ رسول علی اکبر، حسین جس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جیسے ہی علی اکبر اس دنیا میں آئے، زینب حجرے علی اکبر میں آ گئی، حجرے علیہ میں آئیں اور بے اختیار کہا بھیا تمہیں مبارک ہو، بھیا تمہیں چاند سا بیٹا مبارک ہو۔ حسین خوش ہیں، بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے تو بھائی جب خوش ہوتا ہے اور بہنیں آ جاتی ہیں مبارکباد دینے تو بھائی فوراً کہتا ہے بہنا کچھ چاہیے تو مانگو، جو چاہیے آج میں تمہیں دوں گا، آج میں خوش ہوں میرے گھر حسین جیسا بیٹا آیا ہے۔ تو بتائیں زینب نے کیا مانا؟ زینب نے کہا بھیا مجھے علی اکبر ہی دے دو، مجھے علی اکبر ہی دے دو، میں اس بچے کو پالوں، میں علی اکبر کو پالوں۔ وہ مولانا کی طرف دیکھا، مولانا کہ میرے لیے اس سے بڑا فخر کیا ہو سکتا ہے کہ علی کی بیٹی میرے بیٹے کو پالے، میں تو جنم دینے والی ماں ہوں، تربیت زینب کرے گی۔ زینب نے علی اکبر کو گود میں اٹھا لیا، بچہ بھی جیسے تڑپ رہا تھا بیوی کی گود میں آنے کے لیے۔ علی اکبر نے زینب کو دیکھا، زینب نے علی اکبر کو دیکھا، دونوں پھوپھی بھتیجے میں ایسی محبت ہوئی کہ وہ محبت آخری دم تک قائم رہی۔ وہ محبت ختم نہیں ہوئی جو محبت علی اکبر اور زینب میں تھی، جو محبت چچا، جو محبت بھتیجا اور پھوپھی میں تھی، ایسی محبت کسی نے نہیں دیکھی۔ پھر زینب ہیں اور علی اکبر ہیں، کبھی زینب علی اکبر کے کپڑے بدلواتی ہیں، کبھی علی اکبر کے بالوں کو سلجھاتی ہیں، کبھی علی اکبر کا منہ دھلا رہی ہیں، کبھی علی اکبر کو پکڑ کے چلنا سکھا رہے ہیں۔ علی اکبر گھٹنوں میں چل رہے ہیں، زینب ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ علی اکبر نے پہلا قدم زمین پہ رکھا، زینب نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ بھیا علی اکبر نے چلنا شروع کر دیا، علی اکبر نے چلنا شروع کر دیا، بولنا شروع کیا تو زینب نے علی اکبر کو سب سے پہلی جو چیز سکھائی وہ تھی اذان۔ یہ اذان زینب نے علی اکبر کو سکھائی۔ وہ دن اور آخری دن اذان منسوب ہو گئی علی اکبر سے، اذان منسوب ہو گئی علی اکبر سے۔ میرے عزیزوں، جیسے ہی صبح عاشور علی اکبر نے اذان کے لیے پہلا لفظ کہا، جیسے ہی صبح عاشور آئی حسین نے کہا آج میرا مؤذن اذان نہیں دے گا، آج شبیہ رسول اذان دے گا۔ علی اکبر کہاں ہیں؟ علی اکبر کو بلایا گیا، کہا بیٹا محراب اذان میں تم کھڑے ہو جاؤ اور آج تم اذان دو گے، تم اذان دو گے۔ اس کی وجہ حسین نے بیان کی، بیٹا سب کو مخاطب کیا گیا ہے، ساتھ تمہیں معلوم ہے کہ میں آج علی اکبر کی زبان سے علی اکبر کی آواز میں اذان کیوں کہہ پا رہا ہوں؟ کہا مولا آپ بتائیے۔ کہا وجہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر کی صبح تھی تو خود میرے نانا رسول اللہ نے اذان دی تھی، وہ اسلام کی پہلی لڑائی تھی، یہ اسلام کی آخری لڑائی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس میں بھی رسول کی آواز میں اذان کہی جائے، اور سامنے والے لشکر میں چونکہ کچھ اصحاب بھی ہیں، جب وہ رسول کی آواز سنیں گے تو ان پر حجت تمام ہو جائے گی کہ حق کس کی طرف ہے، حق کس کی طرف ہے۔
अली अकबर ने एक बार अपने कानों पे हाथ रखे और रखने के बाद पहला लफ्ज़ कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा, ये आवाज़ ज़ैनब के कान तक चली गई। खेमागाह ज़ैनब में ये आवाज़ ज़ैनब के कान तक गई। ज़ैनब ने अपनी चादर आसमान पे बुलंद करके कहा, परवरदिगार, इस आवाज़ को क़यामत तक जवान रखना, इस आवाज़ को क़यामत तक सलामत रखना। वो ज़ैनब की दुआ है कि आज भी अज़ान सलामत है, आज भी अज़ान जवान है। इसलिए अली अकबर जैसे जवान ने अज़ान दी थी, अज़ान आशूर की इब्तिदा अज़ान अली अकबर से हो गई। हुसैन ने अली अकबर की अज़ान के बाद नमाज पढ़ाई है। सब ने हुसैन के पुष्ट पे नमाज पढ़ी है। ऐसा दिन गुजरा कि जो अली अकबर की आवाज़ से इब्तिदा हो रहा है। तो आज तक आशूर का दिन भी जवान है, आज तक। सुनोगे जुमला, बहुत गिरिया कर रहे हो, खुदा तुम्हारे इस गिरिये को, तुम्हारे आंसुओं को चादर ज़हरा में जगह अता करे। ये मेरी दुआ है, जगह अता करे। तुम्हारे आंसू मोती बन जाएंगे अगर ज़हरा की चादर में आ जाए। ऐसा गिरिया कर रहे हो। जैसे ही इब्तिदा हुई है ना, वहाँ से मुबारक तलबी हुई कि भेजो, जंग का आवाज़ है। तो सबसे पहले असहाब सब खड़े हुए थे। जैसे ही वहाँ से जंग की इब्तिदा का आवाज़ हुआ है, आवाज़ आई, तो असहाब ने चाहा कि हम जाएं। बड़ा मशहूर जुमला है, परसों मैं कर चुका, लेकिन आज तसलसल से आगे बढ़ा हुआ। असहाब ने चाहा कि हम जाएं जंग करने। हुसैन ने एक बार सबको रोका, सब रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। और एक बार अली अकबर की तरफ देख कर कहा, तक़द्दम वलदी, बेटे पहले तुम जाओ, अली अकबर पहले तुम जाओ। मैं चाहता हूं पहले तुम्हारा लाशा उठाओ, पहले तुम्हारा लाशा उठाओ। अली अकबर सुरखरू हो गए, चेहरे पे सुर्खी आ गई, बेख्तियार घोड़े की तरफ गए तो असहाब आगे बढ़ के अली अकबर के सामने खड़े हो गए कि मौला ये नहीं हो सकता, हमारे होते हुए शबीर रसूल का लाशा आ जाए, फिर हमारे जीने का फायदा क्या है? सामने का मौला ऐसा नहीं हो सकता, पहले हम जाएंगे, पहले हमारे लाशें आएंगे। और मौला हम तो आपसे ये भी नहीं कह रहे कि हमारा लाशा उठा के लाइए, मौला जहां हम जख्म खा के गिर जाए वहीं छोड़ दीजिए, हम आपको जहमत नहीं देना चाहते। अली अकबर को रोक दिया, असहाब के लाशें आना शुरू हो गए। हुसैन लाशें पे लाशें लाए, मक्तल में जाके रख दिया। बारी आ गई आल मोहम्मद के हाशमी जवानों की, फिर लाशें लाए और मोहम्मद के लाशें भी आ गए। कासिम की पामान लाश को समेटना कोई आसान नहीं था। कल जनाब अली असगर के मसाइब होंगे, कल झूला बरामद होगा इसी मकाम पर, मेरी माएँ बहनें भी आए और सब आएंगे तो हम देखेंगे कि झूला कैसे बरामद होता। और आज मैं उम्मे लैला को सलाम कर रहा हूँ, कल उम्मे रवाब को सलाम करेंगे। आज बीबी उम्मे लैला को सलाम, कल बीबी उम्मे रवाब को सलाम। सबके लाशें आना शुरू हो गए। कासिम की पामान लाश समेटना बड़ा मुश्किल काम था हुसैन के लिए। हुसैन उस मंजिल को भी सर कर गए, हुसैन उस मंजिल को भी सर कर गए। अब्बास के कटे हुए शाने भी आ गए। आखिरी कुर्बानी रह गई अली अकबर की। कहा बाबा जाने दे, बाबा इजाजत दे दे। अली अकबर पसीने से लगा दिया। कहा बाबा आप तो कोई नहीं बचा है। अली अकबर मैं कौन होता हूँ इजाजत देने वाला? जिस माँ ने जन्म दिया है उससे इजाजत हो, जिस माँ ने जन्म दिया उससे इजाजत हो। कहा पहले धोबी अम्मा से इजाजत ले लो। कहा जिस धोबी ने पाला है पहले उससे इजाजत ले लो। कहा कि बाबा आप भी मेरे साथ चले, आप भी मेरे साथ चले, आप चलेंगे तो धोबी को समझाना आसान हो जाएगा। हुसैन अली अकबर का हाथ पकड़ के खेमा ज़ैनब में आ गए, खेमा ज़ैनब में आ गए। ज़ैनब ने अली अकबर और हुसैन को साथ देखा, कहा कि मेरे भैया कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ज़ैनब समझ गई किस लिए आए। भैया इस वक्त मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा भाई बच जाए, मेरे बच्चे भी कुर्बान, मेरा भतीजा भी कुर्बान। भैया इस वक्त मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा माजाया बच जाए, सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती हूँ, बाकी सारी कुर्बानी। भैया मैं समझ गई, जाओ अली अकबर जाओ। वो भी ने इजाजत दे दी। अली अकबर खुश हो गए, वो भी के कदमों पे हाथ रखा, सलाम किया। वो भी आपका शुक्रिया, चले बाहर, चले घोड़े की तरफ। हुसैन ने रोका, कहाँ जा रहे हो? आप भूपी से इजाजत ले ली। कहा कि पालने वाली भूपी ने इजाजत दे दी, जन्म देने वाली माँ से भी इजाजत ले लो, उम्मे लैला से भी इजाजत ले लो। कहा बाबा आप चलिए साथ। कहा अली अकबर ज़ैनब मिजाज शनासे इमामत है, ज़ैनब को समझाना मेरा काम था।
माँ को समझाना तुम्हारा काम, तुम फसाद बनी हाशिम के मालिक हो, जाओ माँ को तुम समझाओ, इजाजत लो। बाहर हुसैन खड़े रहे, अली अकबर खेमा उम्मे लैला में अपनी अम्मा के खेमे में आ गए। देखा माँ खाके करबला पे बैठी हुई है, माँ खाके करबला पे बैठी हुई है और खाक पर कुछ इशारे कर करके कुछ नकूश बना रही। जैसे ही माँ के मशाम जाम में अली अकबर की खुशबू पहुंची, माँ ने सर उठाया, देखा गड़िया जवान बेटा सामने खड़ा। माँ ने बेख्तियार बेटे को सीने से लगाकर एक जुमला कहा, अली अकबर शब आशूर के गए हुए इस वक्त आ रहे हो बेटा? माँ कब से इंतजार कर रही है। अली अकबर बैठ गए, अम्मा के हाथों को अपने हाथों में लिया, चूम चूम कर कहा, अम्मा मैं आपसे एक सवाल करने आया हूँ। तो बेटे क्या सवाल है? माँ के हाथों को चूम कर कहते, अम्मा मैदान महशर होगा, वहाँ दादी फातिमा ज़हरा की सवारी आएगी। अम्मा एक एक बीवी ये कहेगी, वो भी ज़ैनब कहेगी कि ए अम्मा फातिमा, मैंने आपके लाल हुसैन पर से अपने 2 बेटे कुर्बान कर दिए और मोहम्मद कुर्बान कर दिए। बीबी उम्मे फरवा कहेगी कि ए बीबी फातिमा ज़हरा, मैंने आपके लाल हुसैन पर से अपना 13 बरस का कासिम कुर्बान कर दिया। बीबी उम्मे कुलसूम कहेगी कि मैंने कुर्बानी दी। सारी बीबियां कहेगी कि मैंने कुर्बानी दी। अम्मा ये बताइए, आप बीबी फातिमा ज़हरा से क्या कहेंगी? एक बार उम्मे लैला ने अली अकबर के माथे को चूमा, रुखसार को चूमा और रोते हुए कहा, बेटा मैं समझ गई तू क्या कहना चाहता है। मैं फातिमा ज़हरा से ये कहूंगी कि ए बीबी फातिमा, मैंने आपके लाल हुसैन पर से अपना अली अकबर कुर्बान। जाओ अली अकबर जाओ, माँ ने इजाजत दे दी। अली अकबर ने माँ के कदमों को चूमा, बाहर आ गए। बाबा इजाजत मिल गई, पालने वाली भोपी ने इजाजत दे दी, जन्म देने वाली माँ ने भी इजाजत दे दी। बाबा अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। हुसैन आगे बढ़े, अली अकबर बैठना चाहते थे, हुसैन आगे बढ़े, अली अकबर के हाथ को पकड़ कर कहा, बेटे माँ ने तो इजाजत दे दी, बूढ़े बाप से भी तो रुखसत हो लो। इस बूढ़े बाप थक गए क्या? बूढ़े बाप से भी रुखसत हो लो, क्या रोना नहीं आता? रोए ना, आवाज बुलंद करो, इसलिए कि अली अकबर की शहादत कोई मामूली शहादत नहीं। बेटे बूढ़े बाप से भी रुखसत हो लो। अली अकबर ऐसे नहीं जाने दूंगा। लाए खेमे में आवाज दी, बीबियों आ जाओ, बीबियों आ जाओ। उम्मे लैला भी आ गई, सारी बीबी आ गई, ज़ैनब भी आ गई, उम्मे कुलसूम भी आ गई। हुसैन ने कहा, आओ देखो आज मैं अपने बेटे को कैसे दूल्हा बनाता हूं, आज मैं अपने बेटे को खुद तैयार करूंगा। हुसैन अली अकबर खड़े हुए हैं, हुसैन ने संदूक खोला, उसमें से रसूल का वो अमामा निकाला जो रसूल मेराज में पहन के गए थे। अली अकबर के सर पे बांधना शुरू किया। हर बांधने पर सिर्फ ये कहते थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमामा बांधते गए, इन्ना लिल्लाह कहते गए। अब मेरी माँ बहने बताए, जब हुसैन इन्ना लिल्लाह कह रहे होंगे तो उम्मे लैला पर क्या गुजर रही होगी? माता आज 5 मुहर्रम से अब शहादतें शुरू हो गई। अब मैं तुमसे कहता हूं कि मातम करो, जाओ बेटे, रुखसत कर दिया, जाने लगे। बहुत बाद में जब ज़ैनुल आबिदीन रिहा होकर मदीने वापस आ गए, खुद ज़ैनुल आबिदीन मशाइख पढ़ रहे थे, एक शख्स ने खड़े होकर कहा कि मैंने फौज यजीद के एक सिपाही से सुना है कि जब अली अकबर बाहर आ रहे थे तो बार बार खेमे का पर्दा उठता था गिरता था, उठता था गिरता था। मौला इसका क्या सबब है? का बात यह है कि जब भी अली अकबर जाने लगते, कभी बहन दामन पकड़ लेती, कभी माँ रोकती, कभी भूमि रोकती, न जाओ अली अकबर न जाओ। और कहा सुनो, अली अकबर घर से ऐसे निकले जैसे किसी करियर जवान का जनाजा घर से जाता, जैसे किसी करियर जवान का जनाजा घर से जाता। अली अकबर ऐसे कर। आखिरी बार जिसने अली अकबर के दामन को थामा वो थी 4 वर्ष की सकीना। दामन पकड़ के कहती है, भैया जा रहे हो, ये तो बताते जाओ कि सुगरा को कोई पैगाम देना है, सुगरा को कोई पैगाम देना है। कयामत गुजर गई सकीना के जुमले पर, सकीना के जुमले पर कयामत गुजर गई। अली अकबर चले, घोड़े की तरफ गए। हुसैन ने कहा, मैं तुम्हें सवार कराऊंगा बेटे, मैं सवार कराऊंगा। हुसैन ने रकात पर हाथ रखा, रकात पर हाथ रखा। अली अकबर पीछे हट गए, पीछे हट गए। अली अकबर क्यों सवार नहीं हो रहे? कहा बाबा
रकाब पे आपका हाथ है, मैं आपके हाथ पे अपने कदम कैसे रख दूं? तो बेटे आज हाथ पे कदम नहीं रख रहे, कल यही कदम मेरे कांधे पे होते थे। मैंने तुम्हें अपने कांधे पर उठाया, मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया, आज बात सवार करा। हुसैन ने कड़ियल जवान बेटे को सवार कराया। ये कोई आसान मंजिल नहीं थी, सवार करा दिया। अली अकबर जा रहे थे, अली अकबर जा रहे थे। अली अकबर ने जरा सा घोड़े को एड़ दी, घोड़े की रफ्तार बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता घोड़े की रफ्तार बढ़ी। थोड़ी दूर गए, अली अकबर ने महसूस किया जैसे कोई पीछे आ रहा है। अब जैसे ही पीछे मुड़ के देखा बूढ़ा बाप कमर पकड़े हुए पीछे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है और सिर्फ ये कह रहा, अली अकबर आहिस्ता जा, आहिस्ता जा। अली अकबर जरा पीछे मुड़ के देखते जाओ। अली अकबर मुड़ के आ गए, घोड़े से उतरे, कहा बाबा अगर ऐसे आप पीछे आए तो मैं मैदान को जा नहीं सकूंगा। हुसैन ने अली अकबर का हाथ पकड़कर एक जुमला कहा, अली अकबर अगर तेरा भी कोई तुझ जैसा बेटा होता और वो मरने के लिए जाता तो मैं पूछता कि जब बेटा जाता है तो बाप पर क्या गुजरती है। बस मेरे अजीजों, खत्म कर दी मैंने तकरीर, आखिरी जुमला तकरीर का। अली अकबर वापस आए, खड़े हो गए खैमे के सामने। फिर बाप से कहा, बाबा अब आपको मेरे हाथ की कसम, अब मेरे पीछे ना आइएगा। बाबा अगर आप इसी तरह आते रहे तो मुझसे जंग नहीं हो पाई, जंग नहीं हो पाई। अली अकबर मैं कोशिश करता हूँ बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कि यही खड़े हो गए तो मैं मैदान जंग में लौटता हुआ देखूं, यही खड़े हो गए मैदान जंग में। फिर मामा हुआ तो इससे भी बढ़कर आखिरी तक बसाए पढ़ूंगा। आज आखिरी जुमला सुन लेना, तुमने गिरिया किया यकीनन महाज मजलिस अदा हो गया, खुदा तुम सबकी जवानियों को सलामत रखे। ये बात याद रखो, जब अली अकबर का जिक्र आता है तो जवानों के रोने की बारी होती है, फिर जवानों को रोना, फिर जवानों को मातम करना। जहां अली अकबर जाने लगे तो एक जुमला का, बाबा आपके काम में कुछ कहना है, कुछ कहना है। अली अकबर के दहन के नजदीक हुसैन ने काम किया। अली अकबर ने एक जुमला हुसैन के कान में कहा, हुसैन ने जुमला सुना, चीख मार के रोए, ऐसी चीख मारी कि हुसैन की ये चीख की आवाज ज़ैनब के खैमे तक पहुंच गई। अली अकबर ने जवाब नहीं सुना, घोड़े पे बैठे मैदान को चले गए, मैदान को चले गए। इधर से ज़ैनब ये मंजर देख रही थी, कहा फिजा जरा मेरे माजाई को बुला के ला, मेरे भैया को बुला के ला। फिजा गई, शहजादे आपको आजादी याद कर रही है। हुसैन लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ खेमा ज़ैनब में आए, कहा बहन ज़ैनब क्यों बुलाया है? कहा भैया मैं देख रही थी अली अकबर जाते जाते कुछ कह के गया, तुम्हारे कान, तुम्हारे चादर सहरा का वास्ता है, तुम्हारी आवाज बुलंद होना, तुम्हारी आवाज इस इमाम बारगाह के दर दीवार में जज्ब हो जानी चाहिए। कहा भैया मैंने देखा कि अली अकबर तुम्हारे कान में कुछ कह के गया। बेटा भैया मुझे बता, बेटा क्या कह के गया, बेटा क्या कह के गया? हुसैन ने कहा न पूछो ज़ैनब, न पूछो। कहा नहीं भैया तुम्हें बताना पड़ेगा। कहा ना पूछो। एक बार ज़ैनब ने कहा भैया तुम्हें ज़ैनब के हाथ की कसम, बताओ बेटा क्या कह के गया? हुसैन चीख मार के रोए, आवाज दी, ज़ैनब दुनिया का दस्तूर है कि जब बूढ़ा बाप मरने लगता है तो जवान बेटे से वसीयत करके जाता है। अरे करबला का दस्तूर बदल गया, जवान बाप बूढ़े जवान बेटा बूढ़े बाप को वसीयत करके गया, बाबा मेरे बाप मेरी माँ के पर्दे का ख्याल, पुती के पर्दे का ख्याल, मेरी बहन के रुखसार का ख्याल रखिएगा। बाबा ये घर आपके अमर। तो मोमिनीन आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।